Hello to class 10 students. Hi class. We are doing lesson number 8. We'll be starting with lesson number 8 as I told you earlier also that now we are doing factors of production one by one in our chapters. Like the last one we did was land and the destruction of ecosystem. So basically we did land, now we'll be doing labor, then we'll be moving to capital and then entrepreneur. These four are what the factors of production. Now we are reading factors of production as our chapters now. So this is lesson number 8. The name of the lesson is labor and here we are going to read about the labor. So when we start about talking about labor, so just talk about a simple word labor. So in English a simple word labor means to work hard, mehnat karna, right? So whether you are working mentally or you are working physically, that is going to be your labor. When you do your labor to do something, to achieve something, this is your labor in English, right? But in economics, working hard either mentally or physically is not labor. When you work hard for getting money, or when you work hard to get some reward in return, that is labor in economics. So in English the meaning of labor is hard work, working hard for something, but in economics it means that you are working hard to earn reward, you are working hard to earn money. So let's start with the definition of labor. So labor consists of all human efforts. So labor consists of all human efforts. Labor consists of all human efforts of body or of mind. Of body or of mind. या तो body का या तो mind का, or of mind, which are undertaken in the expectation. Which are undertaken in expectation of some reward. Yeah, surely. So let's go to the definition, and this definition is given by S.E. Thomas. So what does he says? He is saying that labor is consist of all human efforts. जितने भी ह्यूमन एफर्ट्स है, चाहे वो बॉडी के हैं चाहे वो माइंड के हैं, या तो फिजिकल है चाहे तो मेंटल है, राइट? सो व्हेन वी आर डूइंग वर्किंग हार्ड टू गेट दिस रिवॉर्ड, दिस इज द की वर्ड, दिस इज द की वर्ड, राइट? अगर हम इसको हटा देंगे तो फिर इकोनॉमिक्स से हट जाएगा, मतलब फिर वो इकोनॉमिक्स वाला लेबर नहीं रह गया, फिर वो इंग्लिश वाला लेबर हो गया. सो बेसिकली लेबर क्या है? लेबर कंसिस्ट ऑफ ऑल व्हाट? ऑल ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ बॉडी और ऑफ mind which are undertaken in expectation of some reward is what known as labor in economics, right? So labor includes only those efforts of men, physically done or mentally done, which are done in order to earn some what? In order to earn some money, or reward is what? Labor. ठीक है? So labor always indicates some kind of mental or physical work. ठीक है? Exertion undertaken with a motive to earn money. So exertion, this is what? This is an exertion undertaken in order to earn some money. Exertion undertaken in order to earn money. तो मनी की बात जहां तक आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम अर्न मनी वाली बात बीच में नहीं लेकर के आएंगे तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के दायरे से बाहर चला जाएगा. ठीक है? नाउ इफ यू जस्ट सिंपली टेक एन एग्जांपल कि अगर कोई क्रिकेट कोच है एंड ही इज टीचिंग क्रिकेट टू हिज और हर सन और डॉटर, तो इस केस में क्या हो रहा है? ही इज डूइंग आउट ऑफ केयर एंड लव एंड अफेक्शन टू हिज डॉटर और सन. तो उस केस में क्या है? वो मेंटल और फिजिकल वर्क दे रहा है लेकिन वो पैसे के लिए नहीं कर रहा है. Like if I am teaching my daughter or my son for just out of affection, care and love, then I am doing mental work, I am doing physical work, I am taking some exertion, but I am not taking exertion to earn money. I am taking exertion just for the sake of care, the sake of my child's education, right? So in that case, that is a different kind of labor. That is not the labor which we do read in economics. So if I am teaching you people, I am doing it for money. If a cricket coach is teaching his team, then they are doing it for money. So in that case, that is going to be your labor in economics, right? So this is very, very important that whenever you talk of labor, you need to put this earning money point also. Both physical and mental efforts are required to complete work
However, in some kind of work more physical work is required. वैसे तो बहुत मेंटल और फिजिकल वर्क की जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ मेंटल वर्क की ज्यादा जरूरत पड़ती है, फिजिकल की कम. और कई केसेस में ऐसे जहाँ फिजिकल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, मेंटल की कम. लाइक वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ लेबर दोज हु आर मेकिंग कंस्ट्रक्टिंग रोड और डैम. इन दैट केस दे आर यूजिंग मोर ऑफ देयर physically they are putting more exertion than their mental exertion, right? Same way, if a clerk is working in an office, he is not putting more of physical exertion, but he is putting more of mental exertion. तो वो या तो दोनों का उपयोग होगा उसमें, या तो दोनों का कम ज्यादा रेशियो में यूज होगा. Now let's go to the characteristics of labor. Now we'll do characteristics of labor. This is very important. In exams they ask about the characteristics of labor. और लेबर की कैरेक्टरिस्टिक्स तो पूछते हैं एग्जाम में. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट द लेबर एंड हिज लेबर इज इंसेपरेबल. द लेबर जो कि वर्कर है एंड हिज लेबर इज इंसेपरेबल. हिज लेबर इज व्हाट इज इंसेपरेबल. This is a very important feature. So what they are saying exactly in this is this कि जो लेबर है और उसका जो वर्कर है और उसका जो मेहनत है वो दोनों इनसेपरेबल है. दोनों क्या है? इनसेपरेबल है. आप एक लेबर को, एक वर्कर को और उसकी मेहनत को अलग अलग क्या नहीं कर सकते. The effort of a worker cannot be separated from him. So in this case what is happening, हम efforts को अलग नहीं कर सकते. एक वर्कर के अंदर ही उसके efforts मौजूद हैं. तो efforts of labor cannot be separated from a labor. So what we are doing here is this कि वर्कर जो है, वर्कर को और उसके काम को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, दोनों इनसेपरेबल है. ठीक है. बट इट इज नॉट दैट केस विद अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जैसे कि बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन केस में ऐसा नहीं होता. जैसे कि एग्जांपल ले लो, फार्मर हैज टू बी प्रेजेंट इन द फील्ड plowing the field, but the owner of the field does not needs to be present at the time of cultivation. Hence it can be said that labor has to carry his labor power with him. तो अगर हम बात करें कि लेबर के बारे में बात करें तो लेबर जो की बात है वो अगर काम करने जा रहा है तो उसको अपने साथ अपने एफर्ट्स पे ले जाने पड़ते हैं, क्योंकि लेबर अपने एफर्ट्स लेके कहीं छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि लेबर के अंदर ही उसके एफर्ट्स पड़े हुए हैं. तो लेबर और लेबर के जो एफर्ट्स है या लेबर का जो हार्ड वर्क है वो क्या इनसेपरेबल है. ठीक है. अ लेबर वर्क हैज टू बी डिलीवर्ड इन पर्सन, बट right? So I hope the first one is clear to you. In this case they are saying that the effort of a worker cannot be separated from labor. A laborer's work has to be delivered at a place, right? Delivered at a place within the person. So this is the first. So second one is the laborer sell his service only. ठीक है. What they are saying is laborer sell his service only. So the second part says that कि जो लेबर होता है वो सिर्फ अपना लेबर ही बेचता है, वो अपने एफर्ट्स को बेचता है, वो अपने आप को नहीं बेच देता है. ठीक है. He only sells his efforts. हार्ड वर्क को वो बेच रहा है, ना कि वो अपने आप को. ठीक है. तो अगर कोई लेबर काम कर रहा है तो इसका मतलब नहीं उसने काम किया तो उसने अपने आप को बेच दिया, नहीं. उसने अपने चंद घंटों को, मतलब कुछ देर के घंटों को आपको दिया है, आप उसे परचेज कर रहे हो. आप उसी आदमी को परचेज नहीं कर रहे हो, आप उसके एफर्ट्स को परचेज कर रहे हो. अ लेबरर सेल हिज सर्विसेज ओनली एंड नॉट हिमसेल्फ. सो व्हाट ही इज डूइंग, वो अपनी सिर्फ सर्विसेज को बेच रहा है, ना कि अपनी पूरी की पूरी बॉडी को. ठीक है. ये भी ध्यान रखने वाली बात है, राइट. वो अपने आप इंडिपेंडेंट है. अ लेबरर मे और मे नॉट एग्री टू वर्क. The labor factor comes into consideration when he agrees to offer his service on certain terms and conditions. ठीक है. This is a very important feature that a laborer sells his service only, not himself. The next feature is labor is an active factor of production. Third is labor is an active factor of production. Now what is happening in this case? लेबर एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. इस केस से हमारा क्या मतलब है? इससे हमारा ये मतलब है कि जो लेबर है वो
अपने आप काम कर सकता है, उसे किसी के इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे कि क्या है मशीन के केस में, मशीन के पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जब तक आप मशीन का बटन नहीं दबाओगे या मशीन को ऑर्डर्स नहीं दोगे काम करने के लिए या उसे ऑपरेट नहीं करोगे, वो खुद काम नहीं करेगी। ठीक है, वो पैसिव फैक्टर प्रोडक्शन। लेकिन लेबर के साथ ऐसा नहीं है, आप लेबर को एक बार बता दोगे तो उसको पता है कैसे काम करना है, उसके पास इतना ब्रेन है हाउ टू वर्क हिमसेल्फ। लेबर क्या है, एक एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड एंड कैपिटल आर इनएक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन because they cannot produce anything on themselves. But labor is active factor of production. He has brain, he know what he's supposed to do, right? So this is because labor is a living entity. ऐसा क्यों है, क्योंकि labor एक living entity है। A labor can think, act and move in different ways and manners and thus can function according to his needs or the circumstances or the order to given him. He has brain, he know how to do the work which has been assigned to him. So labor क्या है, labor एक active factor of production है, बल्कि ऐसा land के केस में नहीं है। land क्या है, land एक क्या है, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। पैसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, एक्टिव फैक्टर प्रोडक्शन वो होते हैं जो खुद काम कर सकते हैं, और इसका उल्टा हो जाएगा पैसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पैसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो काम होते हैं जो खुद काम नहीं करते हैं, जैसे कि मशीन हो गई, ठीक है, कैपिटल हो गया, ये खुद काम नहीं करते, तो इनको पैसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। जो खुद अपना काम कर लेते हैं एक बार बताने के बाद, क्योंकि उनके पास ब्रेन होता है, उनके पास बॉडी होती है, वो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से काम करते हैं, तो उन्हें एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, फोर्थ इज लेबर इज हाईली पेरिशेबल। फोर्थ इज लेबर इज हाईली पेरिशेबल। इसका मतलब ये है कि लेबर का जो, अगर लेबर एक दिन काम नहीं करता है, अगर एक दिन लेबर क्या है काम नहीं करता है, तो उससे क्या होता है, उसका वो एक दिन बर्बाद हो जाता है, वो लौट के नहीं आ सकता। तो इफ अ लेबर डज नॉट वर्क फॉर अ डे, हिज वन वर्क इज विद वन डे इज totally gone. He cannot work, cannot bring those hours or those days back. If a labor is not working for a day, उसका पूरा entire दिन खराब हो गया, पूरे entire दिन उसने कुछ नहीं किया, तो पूरे entire दिन उसने कुछ नहीं कमाया। इसलिए हम बोलते हैं जब लेबर काम नहीं करता है तो पूरा दिन उसका बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसको उस दिन का पैसा नहीं मिल सकता। ठीक है, as such the laborers agree to work। इसलिए होता क्या है कि लेबर को मालूम है कि मैं एक दिन काम नहीं करूंगा तो मेरा पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, लो वेजेस में भी काम, दैट्स वाई दे एग्री टू वर्क इवन इन लो वेजेस, इवन फॉर लो वेजेस। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों लेबर्स पॉपुलेटेड कंट्री में कम पैसों के लिए भी काम करना शुरू कर देते हैं या काम करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इस केस में क्या है कि लेबर पेरिशेबल है, उसका पूरा का पूरा दिन खराब हो जाएगा। अगर उसने काम करने से मना कर दिया कम पैसे में, तो पूरा का पूरा दिन पेरिश हो जाएगा, उससे खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, वो कम पैसों के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो क्या है, पेरिशेबल है, उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। लेबर हैज अ वीकर बार्गेनिंग पावर। फिफ्थ है आपका लेबर हैज अ वीकर बार्गेनिंग पावर। लेबर हैज अ वीकर बार्गेनिंग पावर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लेबर अपनी बातों को जल्दी से मनवा नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, पेरिशेबल है। क्योंकि इसके तीन कारण है वैसे। पहला कारण क्या है कि वो पेरिशेबल है, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसका पूरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो ज्यादा किसी से अपनी बात मनवा नहीं सकता, या किसी को ये नहीं कह सकता कि आप मुझे हाई वेजेस दो मैं तभी काम करूंगा। ठीक है, तो उसकी वीकर बार्गेनिंग पावर है। वीकर बार्गेनिंग पावर मतलब उसके अंदर इतनी पावर नहीं है अपनी बात मनवाने के लिए किसी से, क्योंकि वो पेरिशेबल है। पहला कारण तो ये है। और दूसरा ये है कि उसकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है, उसकी जो पोजीशन है वो बहुत खराब है, मतलब फाइनेंशियली बहुत कमजोर है। जो फाइनेंशियली कमजोर है उसके पास पहले ही पैसे नहीं है अपने परिवार को चलाने के लिए, तो कम पैसे में भी क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि वो इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, जहां वो दिहाड़ी में काम करता है, वेजेस में काम करता है, कच्चा वर्कर है। मतलब वो काम करेगा तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेगा तो पैसा मिलेगा। ठीक है, काम करेगा तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। साथ में वो जितने घंटे काम कर रहा है, कई बार उसको उतने घंटों के लिए भी पैसा नहीं मिलता है, मतलब वो अंडर पेड भी होता है।
तो लेबर हैज अ वीकर बार्गेनिंग पावर, मतलब लेबर के पास पावर कम है, वो अपनी बात मनवा से इसलिए नहीं सकता है क्योंकि वो गरीब है। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसका पेरिशेबल हो जाएगा। पहली रीजन क्या है, ही इज पुअर, पहला रीजन ये है। दूसरा ये है कि उसकी क्या है, वो पेरिशेबल है, मतलब उसने एक दिन काम नहीं किया तो उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। और तीसरा क्या है, वो इलिटरेट है, ठीक है। इलिटरेट मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं जहां पे आप कच्चे में दिहाड़ी में काम करते हो, आपने काम किया तो पैसा मिलेगा, आपने काम नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा वाला सीन। तो क्या है, लेबर इज हैज अ वीकर बार्गेनिंग पावर, राइट। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। नेक्स्ट फीचर इज लेबर हैज अ टिपिकल नेचर ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट फीचर इज लेबर हैज अ टिपिकल नेचर ऑफ सप्लाई। इसका मतलब क्या है, ये नेक्स्ट फीचर है, इसमें ये कहते हैं कि लेबर का नेचर क्या टिपिकल है। मतलब क्या होता है कि अगर आपको ज्यादा पैसा मिलता है, लेबर को ज्यादा पैसा मिलता है तो वो कम काम करना चाहता है। ये एक टेंडेंसी है लेबर के अंदर। अगर लेबर आर वेल पेड तो उनकी आदत होती है कि लेबर अगर वेल पेड होता है तो वो कम काम करना चाहते हैं, बल्कि लेबर को अगर कम पैसा मिल रहा है तो उस केस में वो ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कहीं ये भी ऐसा ना हो कि जो पैसा मिल रहा है वो भी ना मिले, ठीक है। सो इंडिविजुअल लेबर सप्लाई इज नॉट सिमिलर टू सप्लाई ऑफ एनी अदर फैक्टर। एज द प्राइस ऑफ एनी फैक्टर राइजेस, द सप्लाई ऑफ इट आल्सो राइजेस। किसी भी फैक्टर का अगर प्राइस राइज करता है तो उसकी सप्लाई राइज करती है। लेकिन लेबर के केस में क्या होता है, अगर आप उसका प्राइस राइज करते हैं और उसके दिमाग में ये अगर बैठ जाए कि हाँ मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो क्या करता है, काम को कम करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे ऑलरेडी बहुत पैसा मिल रहा है। बट एज वेजेस रेट इंक्रीजेस, the labor may wish to enjoy more leisure than work for long hours. As his living standard has improved, hence the supply of labor falls. तो ये लेबर की एक टेंडेंसी है जो कि आप आगे जाके बाकी क्लासेस में भी पढ़ोगे कि लेबर उल्टा चलता है। अगर उसे ज्यादा पैसा मिलते हो तो काम कम करना चाहता है, और अगर उसे कम पैसा मिलते हो तो काम ज्यादा करना चाहता है, क्योंकि उसे डर लगा रहता है कि कहीं ये पैसा भी ऐसा ना हो कि ना मिले। नेक्स्ट इज योर सप्लाई ऑफ लेबर चेंजेस स्लोली। Next is supply of labor changes slowly, ठीक है। अब ये इस केस में क्या है, इस केस में बोल रहे हैं कि सप्लाई ऑफ लेबर कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज क्विकली। आप सप्लाई ऑफ लेबर को जल्दी से बढ़ा या घटा नहीं सकते हो, क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड करती है उसकी ग्रोथ के ऊपर। मतलब जब तक जो छोटा बच्चा है तो वो लेबर का काम नहीं कर सकता, जब तक कि 15 से 20-22 साल का ना हो जाए। तो अगर आपको अचानक से सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी लेबर की, स्पेशली कोई पर्टिकुलर एज वाले लेबर्स, अगर आपको 18-19 साल वाले चाहिए, तो उतना आपके देश में फिर पॉपुलेशन 18-19 साल वाली होनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि इंसान को बढ़ने में टाइम लगता है। एक छोटा बच्चा लेबर का काम नहीं कर सकता, या एक बूढ़ा आदमी लेबर का काम नहीं कर सकता। तो क्या है, सप्लाई लेबर की सप्लाई क्या करती है, स्लोली चेंज करती है। बिकॉज ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि लेबर वी हैव टू वेट फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन व्हिच मे बी टेक एज लॉन्ग एज 15 to 20 years. Similarly, if the demand of engineers और डॉक्टर इंक्रीज करती है, then also we have to wait. चाहे फिर वो मजदूरी करने वाले लेबर्स हैं या डॉक्टर्स इंजीनियर्स जैसे लेबर्स हैं, इन दोनों केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ता है। यहाँ पे आपकी सप्लाई क्या है, थोड़ा ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज योर ह्यूमन फैक्टर। लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर है आपका, ह्यूमन फैक्टर। इस केस में क्या है, लेबर क्या है, ये बोल रहे हैं लेबर एक ह्यूमन फैक्टर है, वो कोई मशीन नहीं है। लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर, हेंस सेवरल ह्यूमन कंसिडरेशन आर टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। बहुत सारे हमें ह्यूमन की चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है, जैसे कि उसकी मॉरल वैल्यूज क्या है, उसमें अच्छी चीजें कितनी है, उसमें स्किल कितना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। फैमिली बैकग्राउंड क्या है, डिवोशंस के बारे में बताया गया है, मॉरल वैल्यूज के बारे में बताया गया है। तो हमको ह्यूमन फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है। ह्यूमन फैक्टर क्या है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, लेबर का, राइट। सो दिस इज द योर 8th फीचर। सो टिल डाउन तो हमने जो फीचर्स पढ़े हैं उसमें आपका पहला वाला जो था वो है आपका द लेबर एंड हिज वर्क आर इंसेपरेबल। आप लेबर और उसके वर्क को सेपरेट नहीं कर सकते। सेकंड इज लेबर सेल हिज सर्विस ओनली, नॉट हिमसेल्फ। लेबर अपनी सर्विसेज को बेचता है, ना कि अपने आप को। नेक्स्ट, लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर एक एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब ये है कि लेबर अपना काम खुद करता है, वो किसी के सहारे बैठता नहीं है। वंस द ऑर्डर हैज बीन पास्ड आउट टू हिम, ही कंप्लाई विद दोस ऑर्डर्स। नेक्स्ट इज लेबर इज हाईली पेरिशेबल। लेबर इज हाईली पेरिशेबल मतलब लेबर एक दिन अगर काम नहीं करता है तो उसका वो पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, इसलिए वो पूरे लो वेजेस में भी काम करने को रेडी हो जाता है। नेक्स्ट इज लेबर हैज वीकर बार्गेनिंग पावर। लेबर की बार्गेनिंग पावर क्या है, बहुत
वीक है वो अपनी बात जल्दी से किसी से मनवा नहीं सकता है, क्योंकि वो पुअर है, इलिटरेट है, इसलिए वो कम वेजेस में भी काम करने से रेडी हो जाता है। नेक्स्ट इज लेबर हैज अ टिपिकल नेचर ऑफ सप्लाई। लेबर की टिपिकल नेचर ऑफ सप्लाई है मतलब एट हाई इनकम दे वांट टू वर्क लेस एंड एट लो इनकम दे वांट टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पे उल्टा होता है, वो ज्यादा पैसा मिलना शुरू होता है तो कम काम करना चाहता है और फ्री ज्यादा रहना चाहता है। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ लेबर चेंजेस स्लोली। अभी सप्लाई ऑफ लेबर की बात करें तो आप लेबर की सप्लाई अगर बढ़ाना चाहते हो तो एकदम से नहीं बढ़ा सकते हो, बिकॉज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट हेयर। ठीक है, जब तक आपके पर्टिकुलर एज में व्यक्ति नहीं पहुंच जाता, ही कैन नॉट एक्ट एज अ लेबर। नेक्स्ट इज योर human factor. Human labor is a human, so the certain other features are also to be checked while kept in mind while taking work out of him, like the devotional factor are to be kept in mind, motivational factors are to be kept in mind, family background is very very important, and then moral values are very very important. So these were the 8 features, and the remaining features we can continue within the next video. ठीक है, till then take care of yourself, stay at home, stay healthy.